This is Mani Ruplesh, Assistant Professor of SOIT, IMS Noida. So basically the idea behind soft computing is to model consecutive behavior of humankind. Soft computing is a foundation of conceptual intelligence in machines, unlike hard computing. So soft computing is tolerant of imprecision, uncertainty, partial truth, etc. इन शॉर्ट वे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स स्पैनिंग मैनी फील्ड्स दैट फॉल अंडर वेरियस कैटेगरीज इन कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो टेक्निकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है आपकी? इट इज एन इमर्जिंग अप्रोच टू कंप्यूटिंग विच पैरेलल द रिमार्केबल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड and to reason and learn in the environment of uncertainty and imprecision. So now the question arises, what are the basic principal component include in the soft computing techniques? So the basic component include in this is, first is neural network, second is fuzzy logic, and third is genetic algorithm. So above these methodology are the core of soft computing. These are the basic technology which we used in soft computing. Now, a question arises, what is the difference between soft computing and hard computing? This is the important question which comes in our mind, what is the difference between hard computing and soft computing. So अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में इम्प्रिसाइज डेटा है, बट जो आपकी जो हार्ड कंप्यूटिंग है वो बेस्ड है एक प्रिसाइज मॉडल के ऊपर, जहां पर आपको एक पर्टिकुलर एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है हार्ड कंप्यूटिंग में, बट जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वहां पर आपको इम्प्रिसाइज रिजल्ट मिलता है. एक you can't say particular fixed result, accurate result you can't get in a soft computing technology. So the technically if we want to define what is hard computing, so it is based on the concept of precise modeling and analyze to yield the accurate result. Basically जो आपकी hard computing है, it is well for simple problems, but एनपी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम पे ये आपकी आके बाउंड हो जाती है जो आपकी हार्ड कंप्यूटिंग है. बट सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो पर्टिकुलर एम है जो हमने आपको जनरेट हमने की है वो किस लिए है आपकी, कि जो आपकी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स जो होती हैं जो हार्ड कंप्यूटिंग के थ्रू आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग का जो बेसिक एम है टू सॉल्व द एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, राइट? It uses inexact method to give useful result. हमारा एम क्या होगा सॉफ्ट कंप्यूटिंग का? Which reflects the human mind. जो आपकी ह्यूमन माइंड में का जो एक रिफ्लेक्शन हमारे पास, जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, कई हमारे पास आंसर निकल के हमारे माइंड में आते हैं, तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में जब आपके पास रिजल्ट निकल के आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपकी ह्यूमन के माइंड को, ठीक है? इसमें आपकी अनसर्टेनिटी होती है, पार्शियल ट्रूथ भी होता है, और वी कैन गेट द आंसर इन अप्रोक्सीमेशन वे, ठीक है? जो हम बेसिक हमारा जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जो एप्लीकेशन होती है, वी कैन यूज फॉर द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स because their ideal models are not available that time, right? So this is the basic difference between hard computing problem and soft computing problem. Now move on to the next slide. Is what are the goals of soft computing? The main goal of soft computing is to develop intelligent machines to provide the solution of real world problem. Earlier I said you कि जो आपकी soft computing है वो आपको approximation में आंसर दे रही है, तो हमारा जो real world की problems है, because these problems are not modeled or too difficult to handle mathematically, that time we use the soft computing approach. This is the main purpose
to implement the soft computing model in our real life. Second aim क्या है हमारा? To aim to exploit the tolerance of approximation, uncertainty, imprecision and partial truth in order to achieve the close resemblance with human like decision making. Means जैसे हमारा ह्यूमन माइंड होता है, वर्क करता है अप्रोक्सीमेशन में कि इसका आंसर ये भी आ सकता है, इसका आंसर ये भी आ सकता है, अनसर्टेनिटी रहती है हमारे पास, वेगनेस रहती है। तो वही एम आपका, एक ह्यूमन माइंड में हमेशा कहीं ना कहीं वेगनेस रहती है, जो आपके पास डेटा है वो उसका आंसर क्लियर नहीं होता। तो ये एक पार्शियल एम है हमारे पास जो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड सॉफ्ट कंप्यूटिंग फर्स्ट? तो बेसिकली सॉफ्ट कंप्यूटिंग was invented by जडा। जडे ने इसे डेवलप किया था इन 1981 में। जो आइडिया दिया था सॉफ्ट कंप्यूटिंग का वो जडे ने दिया था 1981 में। तो इन फर्स्ट स्लाइड आई टोल्ड यू व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फजी लॉजिक, सॉरी सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, फजी जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो किन किन मेथोडोलॉजी पर वर्क करती है। तो मेथोडोलॉजी क्या थी आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग की? फजी लॉजिक था, न्यूरल नेटवर्क था, जेनेटिक एल्गो थी, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग थी। ठीक है, तो जेनेटिक एल्गो इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, ठीक है, प्लस न्यूरल नेटवर्क एंड प्लस फजी लॉजिक। तो ये तीनों मेथोडोलॉजी को मिलके क्या बना आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग, राइट? So we can say soft computing is a technique. It is based on 3 tools. First is evolutionary computing, second is neural network, and third one is fuzzy logic. तो जो आपका सॉफ्ट कंप्यूटिंग था, it was developed by Zade in 1981. जो आपकी इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग की जो अप्रोच आई थी वो रोसेनबर्ग ने दी थी आपको 1960 में। जो न्यूरल नेटवर्क की अप्रोच थी वो क्लच ने दी थी आपको 1943 में। एंड फजी लॉजिक अगेन किसने आपको डेवलप किया? जडे ने 1965 में। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? तो an artificial neural network is an information processing paradigms that is inspired by the way of biological nervous system. This is the technical definition of artificial neural network. Such as you can say such as our brain processing system. So ANN is configured for a specific application. जो इसके एप्लीकेशन एरिया की कहाँ पर हम अपना ANN यूज करते हैं। तो बेसिक एप्लीकेशन एरिया के क्या होंगे आपके? पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, डेटा क्लासिफिकेशन थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस। तो हम पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की जहां पर हम बात करते हैं तो वहां पर हम कौन सी अपनी टेक्निक का यूज करते हैं? वहां पर आती है आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। These 3 techniques are the current techniques which we are using nowadays on regular basis on research area. These 3 techniques are widely used nowadays in every research area because you know in today's area everything is based on AI. तो आपकी जहां पर AI की बात होती है वहां पर आप जेनेटिक एल्गो की बात करते हो, फजी के थ्रू आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो, क्योंकि हमारा आइडिया, हमारा मोटिव क्या है कि अपनी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। और जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सोल्व कि हम एक ऐसी मशीन जनरेट कर रहे हैं जो ह्यूमन के माइंड को कंसीडर कर सके। अब अगेन भी क्या था, जो ह्यूमन का माइंड है वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, वहां पे आपको वेगनेस होती है, इम्प्रिसाइज होती है, इनएक्टिविटी होती है। तो वो आपको जब अपनी रिमूव करनी है, जब उन प्रॉब्लम्स को अगर आपको सोल्व करना है, दैट टाइम वी यूज these techniques like fuzzy, like neural network। आपका जो इन्हें आप कनेक्ट किसके थ्रू कर सकते हो? आप IoT डिवाइसेस के थ्रू आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो, इनका इम्प्लीमेंटेशन, राइट? तो टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, तो आप क्या है आपका? ए न्यूरल नेटवर्क is a highly interconnected network of large number of processing element, जिसमें आपके पास बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे। जो प्रोसेसिंग एलिमेंट आपके हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके न्यूरॉन्स।
जो किससे इंस्पायर्ड है, ये न्यूरॉन्स आपके किससे इंस्पायर्ड है, ह्यूमन ब्रेन से, राइट। सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या है न्यूरल नेटवर्क के, मैपिंग कैपेबिलिटी, अगेन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, आपका पास आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत चल रहा है तो वहां पर आप इस टेक्निक का यूज करोगे, रोबस्टनेस आपकी कम होगी। थर्ड क्या है आपका, जो आपकी स्पीड है वो क्या होगी, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपकी कैसी होगी, हाई, राइट। हाउ मेनी एल्गोरिथम वी हैव इन न्यूरल नेटवर्क, neural network algorithm is defined in basic three parts: supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning. अगेन आपकी सुपरवाइज लर्निंग जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, दैट इज योर एरर करेक्शन एंड स्टोकास्टिक। अनसुपरवाइज लर्निंग अगेन आपकी टू पार्ट्स में डिवाइड है, हेबियन एंड कॉम्पिटिटिव। एंड एरर करेक्शन जो इज द पार्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट, लीस्ट मीन स्क्वायर एंड बैक प्रोपेगेशन नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, these algorithm are the main topic and we will cover these topic in next video. Here I am giving you the introduction about the soft computing techniques. तो ये जो भी आपकी सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग है इनके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। फजी लॉजिक, थर्ड टेक्नोलॉजी एज वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूरल नेटवर्क, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टेक्निक मैंने आपको क्या बताई थी, फजी लॉजिक। क्या तभी मैंने आपको बताया था कि फजी लॉजिक का इन्वेंशन किसने किया था, जडे ने किया था 1965 में, ठीक है। तो फजी लॉजिक आपका किसका एक्सटेंशन हुआ, आपका किसको जनरलाइज किया है फजी लॉजिक ने, आपकी क्लासिकल सेट थ्योरी, जो आपने जो हम लोगों ने पहले क्लासिकल सेट थ्योरी पढ़ी थी, तो ये उसका जनरलाइज फॉर्म है आपकी फजी सेट थ्योरी, ठीक है। तो फजी लॉजिक क्या है आपका, फजी लॉजिक में जो फजी लॉजिक से पहले आपको ये क्वेश्चन होता है कि क्लासिकल सेट थ्योरी क्या है। क्लासिकल सेट थ्योरी में क्या मतलब है कि या तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, आइदर यस और नॉट, यस और नॉट के बीच में आपके पास कोई और थर्ड ऑप्शन नहीं है, आइदर दिस एलिमेंट इज बिलोंग टू द सेट ए और दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। तो इस टाइप के सेट आपके क्या कहलाते हैं, आपके क्रिस्प सेट, जहां पर आपको एक फिक्स वैल्यू मिल रही है कि या तो डेटा आपका बिलोंग करता है या फिर आपका डेटा बिलोंग नहीं करता। तो ये जो आपके सेट है जो आप अब तक यूज करें, हमने क्लासिकल सेट थ्योरी जो हमने पढ़ी है, तो वो किस टाइप के सेट कहलाते हैं, आपके क्रिस्प सेट, ठीक है। इसमें आपको पास 0 और 1 के अलावा, अगर मैं यस को 1 बोलूं, नो को 0 बोलूं, तो 0 और 1 के अलावा के मीड में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी लाई नहीं करती क्लासिकल सेट थ्योरी के अंदर। बट फजी लॉजिक क्या है आपका, फजी लॉजिक इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, या आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्रोल सिस्टम मेथोडोलॉजी दैट लेंड्स इटसेल्फ टू इंप्लीमेंट इन सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम 0, 1, 0.1, 0.2, 0.3 एक्सेट्रा, ठीक है। जो आपकी फजी लॉजिक का जो कंसेप्ट है वो इंप्लीमेंट हो सकता है थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो वी कैन से कि फजी लॉजिक आपका इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। तो फजी लॉजिक आपका दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बेसिकली इट फजी लॉजिक क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, इट इज सिंपल वे टू अराइव एट अ कंक्लूजन बेस्ड अपॉन वेग डेटा आपको मिलेगा, इम्प्रिसाइज मिलेगा, और जहां जो आपके मिसिंग इनपुट है वो भी आपको फजी सेट थ्योरी के अंदर आप जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि फजी सेट थ्योरी proposed in 1965 by AZA, and it is a generalized form of classical set theory, ठीक। इन क्लासिकल सेट थ्योरी क्या था आपका कि एलिमेंट आइदर बिलोंग कर रहा है सेट को अदर और डज नॉट बिलोंग टू द सेट, ठीक। तो दिस काइंड ऑफ सेट इज नोन एज क्रिस्प सेट, जिसमें आपके पास 0 और 1 की यस और नो की फॉर्म में डेटा है, तो वो सेट आपको किस तरीके से कहलाता है, आपका क्रिस्प सेट, ठीक है। बट फजी सेट क्या होता है आपका, फजी सेट है मेनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में जितने भी आपके एलिमेंट आ सकते हैं वो अलाउड है आपके फजी लॉजिक फजी सेट के अंदर, बट दिस काइंड ऑफ मेंबरशिप does not allowed in classical set theory,
So this is the basic difference between fuzzy set theory and classical set theory. क्रिस्प मैंने भी आपको बताया, क्रिस्प क्या देता है आपको, यस और नो की फॉर्म में आंसर। तो क्वेश्चन मेरा ये है, इज वाटर कलरलेस, इज वाटर कलरलेस, तो फजी क्रिस्प में आंसर क्या आएगा, आइदर यस और नो। बट अगर मैं इस चीज को, अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपका फजी में लेके जाऊं, तो फजी में मैंने आपको क्वेश्चन दूं कि इज पर्सन ऑनेस्ट, ये पर्सन मैंने इस पर्सन इज राम ऑनेस्ट, फजी वैल्यू बेस में इम्प्रिसाइज डेटा कैसे मिलेगा, इम्प्रिसाइज। अब यहाँ पे देखो आपका ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से वर्क करेगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि हाँ आपके बारे में कोई पूछे आप कितने ऑनेस्ट हो, तो कोई कहेगा यू आर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, कोई कहेगा वेरी ऑनेस्ट, कोई कहेगा ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और कोई कहेगा यू आर एब्सोल्युटली डिसऑनेस्ट। तो ये एक ह्यूमन का ब्रेन हुआ, इम्प्रिसाइज हुआ, इनएक्यूरेट डेटा मिला, आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिला, आपको आपसे ये नहीं मिला कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन आपका ऑनेस्ट है, यू कैन से 100% दिस इज ऑनेस्ट, नो। यहाँ पर आपको डिफरेंट अप्रोचेस मिली कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप ऑनेस्ट हो। तो वो जो आपको, जहां पर आपको पर्टिकुलर एक्सट्रीमली ऑनेस्ट मिल गया, तो वहां पर आपका आंसर क्या मिला, 1। यहाँ पे आपको एक प्रिसाइज आंसर मिल चुका 1, वहां पे आप उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी दोगे, 1। जहां पर आपका आया वेरी ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली से थोड़ा सा लेस हुआ, तो वहां पे आपकी वैल्यू कितनी आई, आपकी 0.8। और नेक्स्ट एट टाइम्स, तो वहां पर आपने किसकी इम्प्रिसाइज वैल्यू कितनी दे दी, 0.4। और जहां पे आपको मिला एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट, तो वहां पर आपने उसकी वैल्यू क्या दे दी, 0। तो दिस इज द डिफरेंस। बट अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू, मेंबरशिप वैल्यू मैंने भी आपको बताई थी कि मेंबरशिप वैल्यू लाई करती है फजी के अंदर, कि वो आपकी 1 से और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है, फजी उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखो कि फजी के अंदर 1, 0.8, 0.4, 0 सबकी सब अलाउड है, दीज और द मेंबरशिप वैल्यू। बट ऑन द अदर वे, क्रिस्प सेट में क्रिस्प आइदर 1 or 0, yes or no की form, right? So this is the basic difference between fuzzy and crisp. Now move on to the next slide. What are the basic operations which we used in fuzzy set theory? So as we read in classical set theory about union, intersection, complement, difference, so these are also in we implement in और our fuzzy set theory also. बट यहाँ पर आपका दो आपके पास ऑपरेशन अलग से न्यू आ जाते हैं। एक आता है आपका इक्वलिटी का और एक आता है आपका डिस्ट्रिक्टिंग सम का, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इक्वलिटी, डिस्ट्रिक्टिंग सम, these are the basic operations which we used in our fuzzy set theory. Now next is, what are the properties which we used in fuzzy set theory? So अभी हमने अपनी जो हमारी क्लासिकल सेट थ्योरी थी, वहां पे हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हम लोग पढ़ते थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी लॉ, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, डी मॉर्गन्स लॉ, इनोवेशन, ट्रांजिटिविटी, आइडेंटिटी। तो ये सारे के सारे जो आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो ये जो लॉ आपके क्रिस्प सेट थ्योरी में थे, क्लासिकल सेट थ्योरी में थे, एज इट इज लॉ आप हमारे फजी सेट थ्योरी में भी चलते हैं। तो ट्रांजिटिव का अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं कि ट्रांजिटिविटी आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम कैसे बताएंगे, इफ A is equals to B and B is equals to C, then ट्रांजिटिव अप्रोच क्या होगी आपकी, A is equals to C। तो ये आपका किस तरीके का रूल होता है, आपका ट्रांजिटिव रूल, जो हमने अपने बेसिक अपने मैथमेटिकल मॉडल में पढ़े थे, वो सेम रूल ही आपके फजी लॉजिक थ्योरी में भी चलते हैं। और थर्ड अप्रोच क्या थी हमारी, जेनेटिक एल्गोरिथम। बेसिक जो आपको मैंने बताए थे कि आपका जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग है वो आपकी कौन 3 टेक्नोलॉजीज पर वर्क करता है। फर्स्ट वन थी आपकी न्यूरल नेटवर्क, वी हैव डिस्कस्ड दिस। सेकंड वन वाज फजी लॉजिक एंड थर्ड वन इज जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम इज एन पार्ट ऑफ इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, ठीक है। तो जेनेटिक एल्गो आपकी होती क्या है,
a genetic algo or evolution techniques algorithm, we can apply on the principle of evolution found in nature to the problem of finding an optimal solution to a solver problem. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का कि जेनेटिक एल्गोरिथम में हमें क्या मिलके आ रहा है, हमें पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा जो हमने अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो जेनेटिक एल्गोरिथम में आपको हर पॉइंट पे एक फिटनेस फंक्शन मिलेगा। आप हर पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे अपनी। इस पॉइंट पे आप, अगर आपके पास 5 लूप चले हैं आपके, तो आपको 5 पॉइंट पे आपको फिटनेस फंक्शन मिलेगा। फिर उन फिटनेस फंक्शन में से आप फाइंड आउट करोगे विच वाज द बेस्ट, तो दैट वाज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो in general we can say genetic algo the problem is encoded in a series of bit string that are manipulated by the algo। ठीक है, अब जेनेटिक एल्गो जो थी वो आपकी कब किसने इनिशिएट किया इस एल्गो पे वर्क करने के लिए, या फिर आपका कब इसका इन्वेंशन हुआ? तो जेनेटिक एल्गो is initiated and developed in the early 1970। स्टार्टिंग इसकी 1970 से बहुत पहले हुई थी। किसने किया था? आपका जॉन हॉलैंड ने किया था। किस लिए? टू फाइंड द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है, तो genetic algorithm directly random search through a given set of alternative with the aim of finding the best alternative with respect to the given criteria of goodness। अब ये जो आपके गुडनेस के जो क्राइटेरिया है वो आप किसके थ्रू रेफर करोगे? अपने फिटनेस फंक्शन के थ्रू। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट ऑफ जेनेटिक एल्गो? सबसे बेस्ट, सबसे जो मेन आपका जो एडवांटेज है जेनेटिक एल्गो का, सबसे मेन एडवांटेज जेनेटिक एल्गो का ये है कि आपके पास कई सारे फिटनेस फंक्शन, हर लूप पे आपको डिफरेंट फिटनेस फंक्शन मिलेगा। तो जो आपका बेस्ट फिटनेस फंक्शन होगा उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो? अपना ऑप्टिमल आंसर निकाल सकते हो। तो हमारा मेन बेनिफिट क्या है कि वी ऑलवेज गेट एन आंसर एट एवरी पॉइंट एंड गेट द आंसर फॉर द बेटर विद द टाइम। जैसे जैसे आपका फिटनेस फंक्शन आपका राइज होता रहेगा वैसे वैसे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती रहेंगी। ठीक है, इट इज जो जेनेटिक एल्गोरिथम है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट इन द रियल लाइफ सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पर आपको हाइब्रिड एप्लीकेशन सॉल्व करनी होती है अपने बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, दैट टाइम वी यूज जेनेटिक एल्गोरिथम। इसका जो पर्पस है, वो कई सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में होता है। और हम जो हमारा जो ये जेनेटिक एल्गोरिथम आपको मल्टी टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग? सबसे ज्यादा जो आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग आजकल कहाँ पे यूज हो रही है, एआई आपकी कहाँ पर यूज हो रही है? आपके डेली लाइफ में। कहाँ पे? जैसे आपके माइक्रोवेव का, वॉशिंग मशीन, आपका एसी, रेफ्रिजरेटर, ये आपका, ये सारी की सारी क्या है? आपके राइस कुकर, ये आपके क्या है? आपके इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। और आपकी गेमिंग के एरिया की हम बात करें तो गेमिंग लाइक पोकर, लाइक चेकर, ये जितने भी आपके जो गेम आ रहे हैं ऑनलाइन, ये आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर स्कोप हमारा क्या होता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का? सबसे बड़ा जो मेन बेनिफिट है वो आपका रिसर्च के एरिया में जाता है। ठीक है, रिसर्च एरिया में आजकल मोस्टली आपकी यूज हो रही है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में यूज हो रही है। और आपका इट इज इफेक्टिव व्हेन इट इज अप्लाइड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जहां पर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आपकी ट्रेडिशनल हार्ड कंप्यूटिंग काम नहीं करती है, वहां पर आपकी सॉफ्ट कंप्यूटिंग काम करती है। ठीक है, सो that's all about my today's PPT of introduction of soft computing. Thank you everybody.